Okay, so welcome to Red FM podcast. Shivarthi Bajaj, co-founder at RSD Bajaj Global Law Firm. Subject matter है आप IPR, Intellectual Property Rights. एक तो बोलने में भी बड़ा मुश्किल होता है. काफी लोग IPR ना, I mean they drop it, but they don't know the full form. ये आपका सब्जेक्ट मैटर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के जरिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो होते हैं उनके राइट्स के बारे में. बट बिफोर दैट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यू आर 80s किड, राइट? आई एम 80s किड. 80s किड एंड 90s किड. बॉलीवुड में जो लॉयर्स होते हैं उनकी एक इमेज होती है, ये करप्ट ही है. तारीख पे तारीख. So do you lawyers send all these memes to each other, तारीख पे तारीख? और या फिर कभी किसी ने बोला कि यार तुम तो बड़े करप्ट हो, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा है कि लॉयर्स तो बड़े करप्ट होते हैं. I think yes, but the image is changing very soon and very quickly. अच्छा. Memes तो देखो हर कोई exchange करता है ना? So memes is another IPR topic in itself. But yeah, which we'll cover. Yeah. So of course, but legal has become very multifaceted now in the current scheme of things, with a lot of intellectual, corporate. Startup economy, new age economy, something which like what we focus on majorly is the new age economy and corporate and stuff. And of course the litigation is a reflection of what is happening at a bigger level. नहीं, I agree, ये काफी चल रहा है. मेरे सारे लॉयर फ्रेंड्स जो हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं. Next thing that we're gonna ask Shivarthi is her remuneration. We will not. We will straight away get to the point, which is when we talk about copyright, ठीक है ना, तो बिफोर वी इवन जंप इनटू द स्पेसिफिक्स, नॉट एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ कि भाई कॉपीराइट होता क्या है. ठीक है ना, हमने सुना है. मैं जितनी भी इंटेलेक्चुअल बातें कर लूं मुझे भी मालूम नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉपीराइट फॉर अ लेमैन लाइक मी. है क्या? Copyright is a subset or a type of a intellectual property right. When we say intellectual property, we means these are rights that protect what you think of intellectually. Copyright is a subset that protects, basically copyright matlab not to copy. It's a right that prohibits other people from copying your work. Okay. कि आपकी जो कॉपी है, जो आपका काम है, उस पे आपका क्या राइट है, that is copyright. कुछ भी काम हो सकता है. कुछ भी काम. This copyright came into practice with Henry VIII when he started this concept back in the day. To protect a lot of work that was created under the government, कि किसी एक कंट्री को तो किसी दूसरी कंट्री की बात बुरी ना लग जाए. अच्छा. From that is where कि किसी का कोई नुकसान ना हो, सबका कुछ प्रोटेक्ट हो जाए. But then now it's evolved to a great deal for the original work of a creator. And is it मैंडेटरी टू फाइल फॉर कॉपीराइट? लाइक ये क्या कोई रूल है कि अगर जैसे मैं क्रिएटिव बंदा हूँ सोशल मीडिया में, या फिर जनरली इफ आई एम एन आर्टिस्ट और आई एम अ फिल्म मेकर और इवन अ स्टार्टअप ओनर, इज इट लाइक इम्पोर्टेंट एंड importance is a different word, I'm sorry, mandatory to file for copyright? That's a very good question actually, Kabir. It is by law. It is always in your favor to go legal. It is always in your favor to secure your rights legally and on paper. But it is not mandatory. Acha. First of all, the whole IPR as a subject is very territorial. It is country specific. Okay. Right? In India, copyright under the Berne Convention and the TRIPS agreement and all a few more things, it is where how it is protected in a way कि अगर आपका वो originality आप establish कर दो, तो ज़रूरी नहीं है आप उसे, मैंडेटरी नहीं है आप उसे फाइल करो. बट फाइलिंग विल ऑलवेज गिव यू अ वेरी वेरी बिग वे अहेड ओवर जस्ट क्लेमिंग योर राइट्स इन अ रॉ मैनर. बहुत महंगा तो नहीं है? क्योंकि ना नहीं, actually, इंडिया में ना हर बिजनेसमैन ये जरूर सोचता है यार ये करने में यार अरे तो कॉस्ट रुपया कितना लगेगा भैया. नहीं, since it is a creator's right, so the expenses especially by the government have been even reduced now. अच्छा. टू अ लेसर डिग्री, कंसिडरिंग आपकी एंटिटी क्या है, आपका कॉज क्या है, तो इट्स वेरी अफोर्डेबल. एक नाम मेरे दिमाग में आता है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया, भुवन बाम फॉर एग्जांपल. ही हैज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डूइंग हिज कंटेंट, है ना. वो एक 5-6 कैरेक्टर्स करता है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इज अ गुड फ्रेंड एंड वेरी टैलेंटेड गाय. So you're saying that a guy like that also will need to look at IP? Yes.
the characters that he's doing can be protected. जैसे हमारा वो this was this song which was the Gangnam Style. That signature step. पहला वायरल सॉन्ग इंटरनेट का जो इतना वायरल गया था, उस टाइम पे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, पर वो आई थिंक इज वाज व्हाट मेरे ख्याल से वहीं से वायरल एज अ टर्म केम. या Yes, which earlier it was more like the videos going viral. Now it's subject to fevers also. Yeah, let's not talk about viral fever. Oh my so, god. Yeah. So yeah, I mean, you can get those steps also So he protected under the IPR. protected the Gangnam Style dance. Is that what you say? Yes. Wow. You Okay. too can do that. There You are can. steps. There are. What I'm telling you conceptually is the steps also can be क्योंकि ये protected. उसका स्टाइल है या फिर उसका This is a signature step था उसका. Interesting. Why is it important for all these content creators who are in the social media space to protect their IP? किससे protect कर रहे हैं? जैसे अगर भुवन बाम है, ठीक है, या फिर we have lot of actually content creators in Red FM also. Karishma is there. If you have seen her reels, very interesting. Like she has these characters Yes. that she does about Yeah. modern women. Then there is a saas and a bahu. So why would they want to do it? For basic reasons of ownership Hmm. and monetization. Hmm. कि ये मेरा है, Hmm. उसको मिलता है right to distribute, right to perform, right to reproduce his work. Okay. ये बेसिक चीजें होती हैं. सो इन सब का कॉमनैलिटी होता है ओनरशिप एंड मेकिंग मनी, which Absolutely. further technically goes into licensing, cross licensing and other aspects wherein you can even license your work to somebody. हाँ. So अगर आपके इंटेलेक्ट और आपके माइंड ने कुछ क्रिएट किया है, सो यू गेट द राइट कि हाँ दिस इज, जैसे हैंकी रख देते ना सीट पे, ये सीट मेरी है, अब इस पे तुम्हें बैठना तो किराया दो. सो दैट किराया इज समथिंग विच विल बी, अब क्रिएटिव बंदे के लिए तो वही उसकी अर्निंग है ना. हाँ, absolutely. सो दैट इज हाउ इट हैज बिकम मोर रेलेवेंट इन द न्यू एज इकोनॉमी. So you're okay. समथिंग लाइक ये जो कच्चा बादाम वाला केस है, हाँ. इट वेंट वायरल ओवरनाइट. अगेन another thing that went मैं इसको viral बहुत अच्छा नाचता हूँ. beyond the fever. Let me tell you that. Kindly include it in the podcast. These videos are in my smartphone. They will never see the light of the day. But मैंने रात को Why ना, aren't you reeling them up? हाँ, नहीं, मैं फिर मैंने सोचा कि वैसे ही कम दोस्त हैं. कि मैं नहीं वायरल होऊंगा, मेरा fever ही होगा. नहीं, ऐसा करते तो वैसे ही कम दोस्त हैं और छोड़ देंगे, तो इससे अच्छा मैंने let it be with myself. But मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ कच्चा बादाम पे, and specifically I think I can beat that girl who was like trending on all the reels, and I can really shake my booty better than her. Having said that, yeah. So back to the kaccha badam bit. Yeah, somebody else uploaded his video, right? If he would have uploaded it, it would have been his copyright. Oh. Okay? So somebody else uploading it makes it contentious कि ये किसका है. But there are enough bodies and there are enough instances to establish कि original work उसी का है. So in this case, in fact, जब इसका गाना remix हुआ था, he was awarded a 3 lakh rupee compensation towards the whole piece of art. So that's very interesting कि कंटेंट उसने बनाया था लेकिन अपलोड किसी और ने कर दिया क्योंकि आप एक डिफरेंट एरिया फील्ड में हो कि भाई ये ऑनलाइन कंटेंट है. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो यानी कि देयर वाज अ थोड़ी फाइट थी वहां पे कि किसी और ने अपलोड करा है, वो बोल रहे तो मेरा कंटेंट हाँ, मतलब है. आप करना चाहो तो फाइट है, बट इस केस में इनको मिल गया 3 lakh rupees compensation for his remix, which could have been better if he would have been better represented. We all know 3 lakh rupees is not Nothing. a great amount for how viral it went. नहीं, 3 लाख हमारे लिए बहुत है शिवारती. नहीं है बहुत, Are you but coming from your आप ये सोचो उस for an original piece of art कितना absolutely. I was just joking, how but big I can agree. it go? I agree. Right? Like given the So that amount is of the thing. virality it आप had. अपने signature steps डालो. नहीं, उसके बाद ना वो गाना कोई सुनना नहीं चाहेगा. अच्छा, एक चीज होती है when we talk about Instagram, इस प्लेटफॉर्म पे आजकल हम अपनी पूरी जिंदगी डाल देते हैं, राइट? एंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफर्स आर देयर पीपल हु आर पेंटर्स, ठीक है ना? देयर पीपल आई नो हु आर ब्रिलियंट पेंटर्स, और वो क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालते हैं अपनी पेंटिंग की. अब उस केस में एंड देयर पीपल जिनको लोग पीपल ही नहीं मानते अगर वो इंस्टाग्राम पे ना हो. ऐसा भी होता है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. Yeah. लाइक You don't अब exist. थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि Do लोग you?
लोग ये बोलेंगे अगर तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो तुम इंसान ही नहीं हो. Do We don't know you. exist in reality? Yes, you are an illusion because you are not on Instagram. Yeah. ऐसा भी हो सकता Yeah, you are an illusion because I can't find your avatar. है. Probably. So, yeah. Probably different kind of. मैं तो वैसे भी मानता हूँ. I'm a huge believer of Matrix. I think we are living in a metaverse already. That's a different point of discussion though. But what happens when you put your content on Instagram? जैसे मैं भी डालता हूँ. I put my photography, I put my digital art, I put my music. तो चलिए वो बात अलग है. लेकिन these things. So, Kabir, these are very smartly designed platforms in terms of their legal requirements, right? So, you know, when a lot of things are taken care of, जब हम वो TNCs को okay करते हैं. हाँ. That is जो हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी है. मुझे लगता है हम कभी पढ़. मैं एक बंदे को नहीं जानता हूँ जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद वो आई एग्री जो क्लिक करता है. अगर उसमें ये भी लिखा होगा ना तुम्हारा घर मेरे नाम का हो जाएगा, या फिर उसमें अगर लिखा होगा ना कि तुम हर महीने मुझे 5,000 रुपए दोगे, आप फिर भी आई एग्री कर दोगे कि आपने पढ़ा नहीं है. एग्जैक्टली. Nobody read it. तब तो उसे कोई ना कोई लॉयर उसे पढ़ के कंटेस्ट कर देगा, वो अलग चीज है. तो बट पॉइंट इज दैट टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ protecting the rights of the creator and giving them the relevant rights so that they are secure. The owner, the person who The has uploaded platforms it. in question. Paparazzis. जो हाँ हाँ pictures हाँ लेते हाँ, हैं. जो घूमते फिरते. So they put their watermark on it. हाँ, Why do वायरल you put the बयानी जी watermark? एक हैं जो इंटरनेट पे Correct. बहुत चलते हैं. हाँ. वो मालूम नहीं एयरपोर्ट के बाहर ही रहते हैं, मुझे लगता है उनके सारे फोटोग्राफर्स ना बेचारे एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े रहते हैं. जैसे जैकी श्रॉफ आया, कोई टाइगर श्रॉफ आया, उनकी पिक्चर बनाते रहते हैं. मुझे तो कहीं आते ही उन्हीं के लिए ही है. This also shows the kind of content I consume on internet, which doesn't speak great about me. Market redirection. यानी इंग्लिश इतनी बोल गया वो करके रहा वायरल बयानी के वीडियो. अरे हाँ, जानवी कपूर निकलते हुए एयरपोर्ट से, ये देखता हूँ मैं इंटरनेट पे. माय गॉड. ओके, इंस्टाग्राम से मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता था शिवारती. सो दिस थिंग हैपेंड फ्यू इयर्स बैक. मेरे को बिल्कुल इसके ना ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन एक बंदे ने इंस्टाग्राम से लोगों के बहुत अच्छे जो फोटोग्राफी थी ना उसके पिक्चर्स निकाले और इंस्टाग्राम के जैकेट से ही, दैट वाज हिज वे ऑफ, देयर इज आर्ट है भाई, मॉडर्न आर्ट है. उसने बड़े बड़े ना उसके प्रिंट आउट्स निकाले, कलर्ड लाइक ह्यूज प्रिंट आउट्स, और आर्ट गैलरी में इट वाज आउट फॉर ऑक्शन, एंड ही मेड लाइक आई थिंक मिलियंस. Yeah, that's because then you have to take the relevant action to protect your rights also. हाँ. That is, I think, a great cause why we're having that podcast. A lot of people come to know about it. Such things can be challenged. It अगर is not उसने कि कोई ले गया तो ले गया. अगर किसी फोटोग्राफर ने वो आईपी करा होता, IP उसका बाय डिजाइन ही हो गया. कॉपीराइट अगर उसका ओरिजिनल वर्क है, उसने अपलोड कर दिया, यू नीड अ टाइम स्टैम्प टू एस्टैब्लिश कॉपीराइट. अच्छा. So I'll give you a quick example. When you there are hacks to do this. One of a very popular hack is that you email your own work to yourself. That is a timestamp. Ki this is my original work. Whenever I'm going to submit it, I'm going to submit it with this particular document, because you cannot really fool the data on the internet, right? Then there is a private mode on YouTube. It's called a private mode, right? Private if mode you होता can silently upload your work on YouTube, it will carry the timestamp of कि इन this लोगों ने person. इस time पे upload करा Kabir था. on this date uploaded this piece of art, or Shivarti on this date uploaded this original stuff, or XYZ did that, and that is something which will be established and will be taken in the court of law as something which is very much admissible as original piece of work if nobody else has established. Okay, Shivarti, give us some जब ऑनलाइन पोस्ट करने जाते हैं, ठीक है ना, सो वी डोंट एंड अप डूइंग कॉपीराइट इन्फ्रिंचमेंट टू अदर कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि भाई आप जो डालने तो जा रहे हो, आपको लगता है ओरिजिनल है, अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन हो सकता है आप कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंच कर दो. इच्छा नहीं है पर इच्छा नहीं है हो गया. हाँ. तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? इन सच अ केस जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल. आप थोड़ा केयरफुल रहें. वो वेबसाइट्स देख लें जो विच आर नॉट एज स्ट्रिक्ट ऑन द कॉपीराइट. अच्छा. राइट. यू कैन चेक कि कितना डीपली कॉपीराइट इम्पोज कर रहा है कोई वेबसाइट. आप देखिए, द बेस्ट वे इज, द इजीएस्ट वे इज टू सीक द परमिशन ऑफ द ओनर, which in a lot of cases the owners give, because it's also a marketing tool for them in terms of it is knowledge distribution. उनको knowledge है कि इनका work कहाँ distribute हो रहा है.
अच्छा, So that's also a way. Third, that we've already spoken about at large, time stamping. कि अगर आपने already establish ही कर लिया है कि काम आपका है, तो फिर तो आपको वैसे ही कोई घर की लोड खेती नहीं कौन है। क्वेश्चन करेगा, हाँ, है ना? ये तो आपका ही ये था। तो आपका ही था. खाएं. रिव्यू कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप कर रहे हैं उसके क्या ओवरऑल ओनरशिप राइट्स हैं एंड परमिशंस कितनी डीप जा रही हैं, और आप कॉपीराइट कंटेंट जो ले रहे हो किसी से, अगर आप बाय भी कर रहे हो, इज इट अ सेफ वे टू बाय अच्छा। इट, इज इट लीगल? समटाइम्स इट शुड नॉट बी कि अगला आपको बोल दे हाँ यू कैन यूज इट एंड लेटर से ओके नो यू कांट यूज इट, आई नेवर सेड दैट. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, हैव यू सीन एनी केसेस लाइक दिस? ऑफ कभी कोर्स हुआ है? वर्ड ऑफ माउथ हैज नो वैल्यू. कैन समवन व्हेन दे हैव रजिस्टर्ड, वैसे तो बहुत ही इंडिविजुअली बहुत ही डिटेल्ड चीज़ हो जाएगी, लेकिन एक रिव्यूअर वो आईपीआर यूज़ करके, कॉपीराइट करके अपना जो भी अपने आप को बचा सकता है? द कंटेंट क्रिएटर, द कंटेंट क्रिएटर इफ ही इज अ रिव्यूअर, क्योंकि Yes. रिव्यूज बहुत लोग करते हैं. सी रिव्यूज को आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हो. रिव्यूज इज अ थॉट और इट्स अ फीडबैक. Right? You can copyright the style of giving a feedback. You can't copyright the feedback. Feedback, if established as factual, will be a valid feedback. फेयर इनफ, yeah. फेयर इनफ. हाँ, क्योंकि वो भी होता है कि काफ़ी रिव्यूअर्स का ना एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है. जैसे अनबॉक्स थेरेपी मेरे ख्याल से एक बंदा है, अमेरिका का है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल है दैट ही हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड, थिंग्स आर लाइक ही इज टॉकिंग टू हिज पेट रोबोट एंड ही इज उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सो प्रॉब्ली दे कैन copyright their style. So Shivarti Bajaj, co-founder of RSD Bajaj Global Law Firm. Very interesting on the social media bit. In the next podcast, we'll let you know as a musician what all you can do if you are a new age musician और उसको लगता है कि भाई इंटरनेट पे तो हम छाने वाले हैं. मेरा ही बजाते रहो. 9:3.5 बजाते रहो.